السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا، اما بعد۔ آج ہم انشاءاللہ سورۃ العادیات کی تفسیر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا۔ یہ 5 قسمیں ہیں جو اللہ تعالیٰ کھاتا ہے، اور یہ قسمیں سورت میں بیان نہیں ہوا کہ کس چیز کی ہیں، لیکن جو صفات بیان ہوئی ہے وہ عام طور پر گھوڑے کی صفت ہوتی ہے، اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اللہ نے گھوڑوں کی قسمیں کھائی۔ اور گھوڑے بھی کون سے؟ گھوڑے کی قسم کیوں کھائی ہے؟ کیونکہ گھوڑا وہ جانور ہے کہ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الخیل فی نواصیہ الخیر الی یوم القیامہ، کہ گھوڑا وہ جانور ہے کہ جس کی پیشانی میں اللہ نے قیامت تک کے لیے خیر رکھی ہے۔ اور عربی النسل گھوڑا جو ہے اس کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ اس کی اپنے مالک کے لیے دعا ہوتی ہے جو اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے۔ عربی النسل گھوڑا، کیونکہ گھوڑوں کی مختلف نسلیں ہوتی ہیں، اور قرآن و حدیث میں کافی گھوڑے کا اہتمام آیا ہے، اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ گھوڑا 3 طرح کے لوگوں کے لیے ہے۔ ایک وہ شخص ہے جس کے لیے اجر و ثواب ہے، اور دوسرا وہ شخص ہے جس کے لیے گھوڑا گناہ کا ذریعہ ہے، اور تیسرا وہ شخص ہے جس کی گھوڑے سے اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے، اس کی ضرورت ہے۔ تو جس کے لیے اجر و ثواب ہے وہ شخص ہے کہ جس نے گھوڑا اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے پالا۔ صحیح بخاری کی حدیث میں آپ پاتے ہیں کہ وہ گھوڑا جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے پالا گیا، اس گھوڑے کا کھانا پینا، اس کا چلنا پھرنا، اس کی ہر چیز اس کے مالک کے لیے اجر و ثواب ہے، اس کے پالنے والے کے لیے اجر و ثواب ہے۔ اور تو کوئی شک نہیں کہ گھوڑا اللہ کی راہ میں اگر پالا گیا ہے جس کا مقصد جہاد کر کے اللہ کے دین کی سربلندی ہو، تو یہ بہت بڑی چیز ہے۔ اور دوسرا شخص جس کے لیے گناہ ہے، گناہ کا ذریعہ ہے، کیونکہ سابقہ زمانوں میں گھوڑا قیمتی ترین جانور تھا، سواریوں میں سب سے قیمتی سواری تھی، اور عام طور پر ہر شخص کے پاس نہیں ہوتا تھا، جو مالدار لوگ ہوتے ان کے پاس ہوتا تھا۔ اس لیے بعض لوگوں کے لیے گھوڑا رکھنا ان کے لیے فخر اور تکبر کی دلیل ہوتا تھا، فخر اور غرور کے لیے گھوڑا رکھتے ہیں۔ تو کوئی شک نہیں کہ اگر یہ مقصد ہے تو گھوڑا رکھنا انسان کے لیے بربادی کا ذریعہ ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جس نے اپنی ضرورت کے لیے رکھا ہے، کہ اس کے نہ اجر ہے نہ گناہ ہے۔ خیر بات کر رہے تھے کہ یہ 5 اللہ نے گھوڑوں کی قسمیں کھائی۔ والعادیات ضبحا، ان گھوڑوں کی قسم جو دوڑ کر، ضبح کے معنی ہانپنا، ہانپنے سے مراد جو سینے سے آواز نکلتی ہے۔ فالموریات قدحا، پس جو رات کے وقت دوڑتے ہیں اور ان کے دوڑنے سے پتھروں سے چنگاریاں نکلتی ہیں۔ فالمغیرات صبحا، اور جو صبح سویرے حملہ آور ہوتے ہیں۔ اور یہ بھی عربوں کے ہاں انداز تھا کہ کسی قوم پر حملہ کرنا ہوتا تو صبح سویرے حملہ کرتے۔ ابھی جن پر حملہ کیا جاتا اپنی ان کی آنکھ کھل رہی ہوتی تو ان پر حملہ کر دیتے۔ اس کی 2 وجہ تھی، ایک تو تاکہ رات کے اندھیرے میں ان کو پتہ چل سکے رات کے اندھیرے میں کہ کون دشمن ہے کون اپنا ہے، تو صبح روشنی میں پتہ چل جاتا۔ اور دوسرا یہ بھی کہ کسی پر یہ اس کو تان بازی نہ کی جائے کہ اس نے شب خون مارا ہے، یعنی اندھیرے میں حملہ کیا ہے، اس لیے وہ صبح سویرے حملہ کرتے۔
तो यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि सुबह सवेरे और होते हैं फासर नबी नका, अपने दौड़ने के साथ गर्द उड़ाते हैं, फवसत नबी ही जमा, और दुश्मनों के लश्करों के फौजों के दरमियान जा पहुँचते हैं। तो कोई शक नहीं कि इस तरह के घोड़ों की ये जो कस्में खाई गई हैं, ये इसलिए कि जो उनका अजीम किरदार है जिहाद के अंदर, अल्लाह के दीन के गलबे के अंदर। इन्नल इंसान लिरब्बिही लकनूत, अल्लाह ने इस नेमत का बयान करके फरमाया कि बेशक इंसान अपने रब का लकनूत, बड़ा नाशुक्र है। व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और बेशक वो अपनी नाशुक्री पर गवाह भी है। अल्लाह ताला कुरान करीम में मुख्तलिफ जगहों पर अपनी नेमतों का बयान करता है और नेमतें बयान करके उन नेमतों का शुक्र अदा करने का हुक्म देता है। और जब इंसान उनकी नाशुक्री करता है नेमतों की, तो उस पर फिर इंसान को मदम्मत की जाती है कि अल्लाह की नेमतों का हक़ ये है कि उनका शुक्र अदा किया जाए, कदरदारी की जाए, ना कि उनकी नाशुक्री की जाए। तो नेमतों की नाशुक्री होती क्या है? क्या सिर्फ ज़बान से कहना कि मेरे पास कुछ नहीं है? अब कोई शक नहीं कि भी नाशुक्री की बहुत बड़ी उसका अंदाज है। और बाद लोग अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें होने के बावजूद जब पूछो कि कैसे हालात हैं, बस कुछ नहीं बचा, मारे गए बस, जैसे कि अल्लाह की उन पर नेमत हो ही कोई ना। तो इसलिए ज़बान से भी नेमतों का इनकार करना नाशुक्री का बहुत बड़ा अंदाज है। लेकिन बाज़ औक़ात आदमी ज़बान से तो अल्हम्दुलिल्लाह कहता है, अल्लाह का बड़ा शुक्र है, लेकिन दिल में अल्लाह की नेमतों की कोई कदरदारी नहीं, अल्लाह की नेमतों को कोई एहसास नहीं है। तो ये भी हकीकत में नेमतों की नाशुक्री का अंदाज है। और बहुत से लोगों की नाशुक्री किस तरह से है? ज़बान से भी कह देंगे कि अल्लाह का शुक्र है, मकान के ऊपर भी हादा में फजल रब्बी लिख देंगे, समझे ना, गाड़ी के ऊपर भी स्टिकर लगाएंगे, लगा देंगे इस तरह का। लेकिन अल्लाह की नाफरमानियाँ करके, अल्लाह की नेमतों का गलत इस्तेमाल करके, असल जो अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री ये है कि अल्लाह की नेमतों का गलत इस्तेमाल करना, अल्लाह की नेमतों को उनको जो है दुनिया की अयाशी और बदमाशी में उनको उड़ाना, बल्कि हराम चीज़ों में उनको लगाना, तो ये है अल्लाह की नेमतों की असल नाशुक्री। इसे शुक्र जो है सिर्फ ज़बान से नहीं है, शुक्र ज़बान से भी है, दिल से भी है और आज़ाद से भी है। इन तीनों चीज़ों से शुक्र अदा होता है। तो अल्लाह मानता है कि बेशक इंसान अपने रब का अल्लाह बड़ा नाशुक्र है, और इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद, और बेशक वो अपने इस नाशुक्री पर गवाह भी है। अच्छा, अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए क्या करना चाहिए? क्या वो चीज़ है कि जो आदमी कर ले, अल्लाह की नेमतों की कदरदानी हो, नेमत का एहसास हो? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें उसका फार्मूला ये दिया है कि हमेशा दुनियावी तौर पर अपने से नीचे वाले के देखो, ऊपर वाले को न देखो। दुनियावी लिहाज से, दुनियावी नेमतों के एतबार से हमेशा से अपने से कमतर को देखो, अपने से ऊपर वाले को देखो। कि अपने से कमतर को देखने का माना कि मकान आपका छोटा होगा जो आपके गुजारा हो रहा है जिसमें, लेकिन उसको देखो जिसके पास मकान नहीं है, या वो मकान उसका भी छोटा है, उस किसी झोपड़ी में है, समझे ना। हाँ, ऊपर वाले को देखोगे इसका इतना बड़ा पैलेस, इतना बड़ा बंगला, और मेरा छोटा मकान, तो वाकई दिल तंग पड़ेगा। लेकिन जब ये देखो कि मेरे पास मकान है, सर छुपाने की जगह है, और वो भी लोग हैं जिनके पास ये भी नहीं है, तब इस नेमत का एहसास होगा। गाड़ी आपके पास होगी, पुरानी होगी, कोई सस्ती किस्म की होगी, तो अगर ये देखोगे कि जिसके पास है ही नहीं, हाँ, तब पता चलेगा कि वाकई मुझ पर अल्लाह की क्या नेमत है। और जब ये देखोगे कि फलां के पास कौन सी महंगी तरीन नए मॉडल की गाड़ी, फिर सारी बात है, आपकी गाड़ी तो अपनी नज़रों से जाती रहेगी। इसी तरह हर चीज़ में सेहतमंदी के लिहाज, अगर कोई तकलीफ़ें हैं, कोई बीमारियाँ हैं, लेकिन चल फिर रहे हो, खा पी रहे हो, अल्लाह के फजल से, अल्लाह का शुक्र अदा करने की ज़रूरत है। कि वो भी लोग हैं जो बेड पर पड़े, बिस्तर पर पड़े, खा भी नहीं सकते, कोई पी भी नहीं सकते, तब इस नेमत का एहसास होता है कि अल्लाह की मुझ पर कितनी बड़ी नेमत है।
تو इसी तरह से दुनिया की हर नेमत, लेकिन ये फार्मूला सिर्फ दुनियावी नेमतों के लिहाज से, जहाँ दीन की बात है, नेकी का मामला है, तो वहाँ से अपने ऊपर वाले को देखो कि मैं अगर नेकी की है मैंने, तो मुझसे बढ़कर नेकी कितने लोग कर रहे हैं, समझे ना। वहाँ से अपने ऊपर वाले को देखो कि आपसे बढ़कर नेकी कर रहे हैं, ताकि आप उनके साथ मुकाबले में लगो, ना कि अपने से नीचे वालों को देखो कि मैं तो पाँचों नमाज़ें फ़र्ज़ पढ़ लेता हूँ, हाँ लोगों को इसकी तौफीक नहीं मिलती। इसलिए जहाँ नेकी की बात है, दीन की बात है, वहाँ पर अपने से ऊपर वालों को देखो। कुरान करीम में बार बार अगर किसी चीज़ में कंपटीशन का, मुकाबले का जिक्र हुआ है तो नेकी का है। वफ़ी ज़ालिका फ़ल्यतनाफ़सिल मुतनाफ़िसून, दुनिया के किसी काम में कंपटीशन का जिक्र नहीं है कुरान में, और बल्कि इसकी मजम्मत की गई है। अलहाकुमुत तकासुर में हम यही पढ़ कर आए कि एक दूसरे के आगे बढ़ने की दौड़, अल्लाह ने उसकी मजम्मत की है। इसलिए ये वो फार्मूला है कि जिससे इंसान अल्लाह की नेमत को पहचान सकता है कि अल्लाह की मुझ पर कितनी नेमत है। और हदीस में इस बात फरमाते हैं कि अपने से नीचे वालों को देखो, दुनियावी लिहाज से ऊपर वाले को न देखो, इससे तुमको अल्लाह की नेमतों की कदरदारी होगी कि अल्लाह की मुझ पर क्या नेमतें हैं। तो यहाँ पर इस सूरत में अल्लाह ने 5 कस्में खाकर इस हकीकत को बयान किया कि इंसान जो है कितना नाशुक्रा है, और अपनी नाशुक्री पर गवाह भी है, ज़बान से कहता फिरता है, दिल से इस तरह के एतराफ़ है उसके। व इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, एक हकीकत तो ये बयान की कि इंसान की नाशुक्री, और दूसरी इन कस्मों को बयान करके ये हकीकत बयान की कि इंसान की माल से मोहब्बत किस कदर है। व इन्नहु, और बेशक ये इंसान लिहुब्बिल खैर, माल की मोहब्बत में बड़ा शदीद है। और माल की मोहब्बत ये इंसान के अंदर रखी गई है, सवाए कि अल्लाह ताला अगर किसी को इससे दूर कर दे। कल्ला बल तुहिब्बूनल माल हुब्बन जम्मा, फरमाता है कि तुम माल से बड़ी शदीद मोहब्बत करते हो, और इसी माल की मोहब्बत में आकर फिर इंसान कंजूसी करता है, बुखल करता है, लोगों के हकूक़ खाता है, उनको जो देना चाहिए नहीं देता, बल्कि उनके हकूक़ ज़ब्त करता है, जुल्म करता है। और हत्ता कि इसी माल की मोहब्बत में आकर अजीज़ तरीन करीब के रिश्ते नाते भी टूटते हैं। वहाँ पर भी माल की वजह से कि दुनिया की लड़ाई झगड़े सारे किस चीज़ पर है, इसी माल पर। तो इसलिए इन्नहु लिहुब्बिल खैरि लशदीद, के बेशक माल की मोहब्बत में बड़ा शदीद है। और अगर इंसान ये माल की मोहब्बत दिल से निकाल दे तो उसकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाए। माल आने जाने वाला है, आज है कल नहीं होगा, समझे। अगर कल नहीं तो आज होगा, परसों मिल जाएगा, समझे। कहने का मकसद ये आने जाने वाली चीज़ है। और इसलिए जिन लोगों ने माल को दिल से निकाला होता है उनको कोई परवाह नहीं होती। हमारे शेख इब्न बाज़ रहमतुल्लाह अलैह सऊदीया के मुफ्ती आज़म थे, किसी ने उनको कहा कि उनका कोई खेत था, ज़मीन थी उनकी, तो जो खेत के ऊपर उनका निगरान रखा होता था, उन्होंने आकर उनको बताया कि इस तरह से हमारे जो साथ वाला पड़ोसी है खेत वाला, उसने कुछ खेत का हिस्सा अपने खेत में मिला लिया है, कुछ चंद फुट में थोड़ा होता है जहाँ पर ज़मींदारों का काम इस तरह। तो शेख साहब कहने की कोई बात नहीं, उनको ज़रूरत होगी, कोई बात नहीं, कोई मुश्किल नहीं, यानी बड़ी फराख दिली के साथ। वरना हम तो लड़ते मरते हैं इस तरह की चीज़ों पर। कोई 2 इंच भी कोई किसी की जगह ले ले, ली क्या कौन होता लेने वाला। लेकिन ये है भाई, और हकीकत में दुनियावी मामलात में माल दौलत के साथ इसी तरह का मामला होना चाहिए कि कोई बात नहीं, खुसूसन बहन भाइयों के साथ, रिश्तेदारों के साथ कोई बात नहीं, उसी चीज़ ले ली है तो क्या मुश्किल ले ली है। उन्हीं के बारे में जिक्र कहा जाता है कि कोई गरीब आदमी था अफ्रीकी, और शेख साहब से कोई खास की कि मुझे ताउन चाहिए, कोई मसाला चाहिए। तो शेख साहब ने उसको 5,000 रियाल का चेक दिया। अब उसने क्या किया, वो 5,000 के साथ एक ज़ीरो और मिला दिया, 50,000 कर दिए। जब बैंक में गया तो बैंक वालों ने देखा कि इसने जालसाजी की है, तो उन्हें शेख को फ़ोन किया कि इस तरह से आपने फलां आदमी को चेक दिया है, तो उसने एक ज़ीरो और डाल दिया। शेख साहब कहने लगे इसको 50 ही दे दो, इसकी इतनी ज़रूरत हो। देखिए ना कि किस कदर फराख दिली है। और ये नहीं कि बहुत कोई लैंडलॉर्ड थे, बहुत अमीर थे,
यानी एक उनकी सैलरी थी गवर्नमेंट की तरफ से जो मिलती थी, लेकिन दिन रात अल्लाह की राह में इस अंदाज से। मैं सिर्फ मिसाल दे रहा हूँ कि जब माल की दिल में मोहब्बत नहीं होती तो उसको ये होता है, कोई बात नहीं, इसे ले लिया तो क्या मुश्किल। इसलिए यानी कि इंसान को नहीं चाहिए सिर्फ माल की बुनियाद पर लोगों से लड़ाई झगड़े करे। अगरचे इंसान का हक है लेना, लेकिन जब देखे कि उसकी वजह से मामलात बिगड़ते हैं, ताल्लुकात ख़राब होते हैं और खुसूसन रिश्तेदारियाँ टूटती हैं, तो फिर वहाँ पर माल जो है कहीं ये ना हो कि उससे हमारी रिश्तेदारियाँ टूटे और सिला रहे कता रही। अच्छा, माल की मोहब्बत प्यार करके उसके बाद आता है अफला यअलमु इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर, क्या ये अल्लाह की नेमतों की नाशुक्री करने वाले और माल को दिल में समेट समेट कर रखने वाले, इनको पता नहीं कि कल जब कब्रें खोली जाएंगी और कब्रों के अंदर जो कुछ उसको निकाला जाएगा। अफला यअलम, क्या ये जानता नहीं, इज़ा बुअसिरा मा फिल क़ुबूर, जब उठा लिया जाएगा जो कब्रों में है। कब्रों में क्या है? मुर्दे हैं, इंसान है। कि जब इस इंसान को, इस बखील को, कंजूस को जो माल से बड़ी मोहब्बत करके माल को समेट समेट के रख रहा है, कल इसको कब्र से उठना पड़ेगा, निकाला जाएगा। और सिर्फ निकाला ही नहीं जाएगा, और हुस्सिला मा फिस सुदूर, अल्लाह के सामने खड़े होकर ज़ाहिरी बात तो है, वो तो है, क्या बातें की थी, क्या काम किए थे, क्या अच्छाई बुराई थी, वो तो उसका तो हिसाब जो है वो तो है। और हुस्सिला मा फिस सुदूर, सीनों की बातें भी खोल ली जाएंगी, सीनों के रात भी खोल लिया जाएगा, सीनों में क्या था। बावकात इंसान लोगों के सामने बड़ा अच्छा होता है, लेकिन दिल का कुछ और मामला होता है। तो क़यामत के दिन के जो हिसाब किताब है वो सिर्फ ऊपर के नहीं, हत्ता के दिलों के भी, और दिल के इरादे भी, उनका भी हिसाब है। हुस्सिला मा फिस सुदूर, कि सीनों के अंदर भी जो कुछ है वो भी अल्लाह निकाल जाहिर करेगा कि इसके दिल के अंदर नीयतें क्या थी, इसके इरादे क्या थे। इसलिए ज़रूरत है दिलों को साफ रखने की। और जन्नत में जाने की शर्त क्या है? इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। अल्लाह माता है कि जन्नत में जाने वाले हैं ही वो जिनका दिल साफ होता है, आईने की तरह साफ दिल, कि जिसमें ना तो अल्लाह ताला के बारे में कोई गलाज़तें हैं, कोई शिर्क की, बिदात की, नाफरमानियों की, गुमराहियों की, और ना बंदों के हवाले से ना कोई कीना है, ना बुग़्ज़ है, ना हसद है, ना बदगुमानी है, ना कुफ़्र, गुरूर, तकब्बुर है। हाँ, ये वो दिल है कि जो साफ दिल, ये जन्नत को जाने वाले हैं। तो इसलिए क़यामत का दिन वो दिन है कि जिसमें हत्ता के दिलों के मामलात भी देख लिए जाएंगे। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लख़बीर, बेशक उनका रब उस दिन उनसे पूरी तरह बाखबर होगा। कौन क्या करके आया है, क्या लेके आया है, उसके दिल के इरादे भी क्या है। अल्लाह ताला जिसने हिसाब लेना है, जिसने फैसले करने हैं, उस रब को एक एक बंदे की हर चीज़ का पता होगा, और इसलिए उसी के मुताबिक फैसले भी करेगा। जिसमें बहुत बड़ी तंबीह है इंसान के लिए कि किस कदर ज़रूरत है इंसान को अल्लाह के साथ अपना मामला सही करने की, अपने आप को अल्लाह के लिए खालिस करने की। बारक अल्लाह फीक, जज़ाकल्लाह खैर।